Okay. Anyone who wants to start with the recapitulation for the yesterday's session, what we have did with the mounting and the file shares? Anyone? Ayush, please go for the recapitulation for yesterday's class. Ayush Mishra, 21 BC B33. Yes, sir. Chalo, start it. Whatever you understood, just give a brief explanation of yesterday's class. Okay. So yesterday we discussed about how the web servers and the DB servers are configured. Suppose there is a client connected to internet and sent a request to the load balancer. It gets distributed to the web server. Sir, my voice is audible. Yeah, you are audible. From the load balancer, it gets distributed to the web servers, and further, when it hits the internal load balancer, it gets distributed to the database server. Then we discussed about user data. User data is usually a structured data. DB server stores this data such as name, email, phone number, profile pictures, etc. Name and email are stored in the format of string. Phone numbers is stored as int. Now the question is, profile picture is kept in which format? That is, image and videos MP3 are stored or contained in the container. We keep the URL in the container, which is in a string format. Then we discussed about how do we configure a particular server into a DB server. We install DB engines for this. DB servers like SQL, MongoDB, Oracle store structured data like name, age, email, phone, etc., phone numbers, etc. Then we discuss generally stakeholders or the client does not want that the developer should have the access to the whole Azure portal. Whatever storage kind of thing we have created in Azure portal, we mount them on our developer's virtual machine. We create a storage container in Azure and try to mount it in a web server or DB server. Now, we discussed about the basic structure or the architecture. We have subscription under which resource group, under which virtual network. Then we created subnets inside it. We will have our VM, virtual machines, and we created a storage account. In the storage account, we create inside it we create a container and manage it or mount it to the virtual machines. Our Linux system or server, we can mount a particular container on our Linux machine using BlockFuse. Created a resource group, created a virtual network, added a subnet of address range 10.0.1.0/24. Then we created a virtual machine. We took CentOS image and named our virtual machine as CentOS VM and took the availability as no infrastructure redundancy required. NIC network security as set to basics. Now we created storage account with a unique name and redundancy LRS. We tried to connect with the virtual machine via SSH. We followed certain steps such as we open the terminal, which is for Linux, and we can go for Excel, Putty, anything for the Windows. Then we write a command cd downloads. We run a command for the chmod 400 file name. We run a command ssh file name azure@ID. Switch to the super user and we'll go to the root directory by writing a command sudo su, which is used to switch from normal user to a super user.
Then we created a container named as my container. Inside my container, we upload a file. We try to mount my container with our server. Then we configure the Microsoft package repository to check whether the package is successfully installed or not. We write a command ls/etc/yum.repos.d. We got Microsoft-prod.repo. We run a command further yum install blobfuse. Now the blobfuse is installed. To check if any storage is mounted in the virtual machine, we run a command df space -h. We have some temporary files attached like dev, shm, run, etc. To prepare for mounting, we run a command mkdir/mnt/rramdisk to create a directory. Mount space -t tmpfs-o size we took as 100 GB, tmpfs/mnt/ramdisk for temporary mounting purpose. We use this for temporary mounting purpose. To make directory inside our RAM disk, we wrote mkdir mnt/ramdisk/blobfuse. To authorize access to our storage account, we make a copy of account name, account key, container name. We get our account key inside the security plus networking access key. We created fuse underscore connection.cfg inside our root folder only using vi/fuse underscore connection.cfg. Then we switch to insert mode, copy and paste the account name, account key, container name, save, container name, etc. Then we save and exit. Then we try to restrict access so that no other user can read. We write a command chmod 600 \fuse underscore connection.cfg to create an so basically these are the process for mounting a particular container on our local VMs, right? Yeah. Yes, sir. We can quickly wrap it up that these were the procedures that we did for the mounting, and you can just proceed with the file shares very quickly. Sir, I haven't covered the file shares. I only did this part. Okay, perfect. Then no issues. Create the file shares today and just try to connect in two VMs and just see whether the files are getting shared or not. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much for the detailed explanation, Ayush. Highly appreciated. So I think so today. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. So today we can get started with our today's topic. So basically the today's topic that we are going to discuss today. So on the most recent days, we have been talking a lot about website hostings and all. So today there's a topic named storage Explorer. So this is the thing that we are going to learn today. But before Storage Explorer, today we are going to learn about static website hosting. So you know, all of you must know that what the difference between a static website and a dynamic website. So basically static websites consist of some plain HTML files where just contain some information about some organization. For example, our Silicon's website for the silicon.ac.in is just a static website where we have all the information of Silicon. But a dynamic website is a website where a lot of user interaction happens and a lot of things changes dynamically. For example, your ERP portal is a dynamic website because there's a lot of user interaction and the feed change, or rather the view changes on the basis of your user interaction or the server's response. For example, you can schedule your
schedule your canteen meals. You can apply for leave. You can check your attendance list and everything. A whole kind of stuffs are over there. So that's an example of a dynamic website, and the static website is just a singular web page where we just contain, where we just store the information of some organization. For example, the info page of any companies where you don't interact a lot, the contents remain the same over a period of time. So that is known as a static website hosting. So what was the so this static website hosting, so basically what we did earlier for the hosting part was that we made a VM. We configured a web server over here. And then after configuring the web server, if suppose via IIS server or the Apache. Okay. So for Windows, it's IIS, and for Ubuntu or Linux, we can go for the Apache too. Okay. So we configured this and we got the public IP. We hit that public IP and we get the contents. Okay. So mostly these kind of web servers are expensive, or rather from feasibility point of view. What if your client asks to just host a simple website that's a static website? What you can do is that if suppose you always have this evergreen option of creating web server and making it as configuring it as a web server, the virtual machine that you have created. Okay, this is the evergreen solution. But what if in terms of feasibility, or what if in terms of costing and all? So Azure provides a beautiful feature just to host static websites inside our containers that we are going to see right now. Okay. So if suppose these costing of these virtual machines are higher than with respect to the static website hosting part, you can compare all these things over the internet. So we have static website hosting inside our Azure portal. Then why to go for this big infrastructure setup kind of a thing? Okay, so there might be an issue when a client comes up and says that I have 10 static website. Then how do you host that? So again, you will be saying I'll be creating 10 different VMs and just configuring over there. Okay, so if suppose I have the option of static website hosting, why don't I use it? So let's go and get started with the static website hosting. Okay, so I will be going back to my Azure portal. This is my Azure portal. I already have a resource group created. Create a new resource group of your name, anything. I have created storage RG. Okay. I will create inside my storage RG. I will create a storage account. Click on storage account. Click on storage accounts. I don't have any storage account at the moment, so I'll be creating a new storage account. The resource group would be storage RG, and it would be my storage account for batch 2. Okay. So my account name would be my storage account name would be my storage account for second. Okay. So this is my storage account name. It would be Central US. I will go back and drill down to LRS, go to advanced, go to networking, go to data protection, go to encryption, next tags, next review. And I will create it. So let the deployment happen over here.
So our deployment is ready. Our deployment is ready. We will be going back to our resource. And you can see that I don't have any containers at the moment. I have a default container named logs over here. So what I will do, I will just make a container over here. The container name would be my container. My container. Let's create it. Let's create it. And inside my container, I will upload a particular file. Just upload this one. Click on upload. It's uploading. Perfect. It's uploaded. Okay. So now I have my containers ready inside my storage account. I have two containers, my container and this log is a default container. I will talk more about it on the later half of the class. But before that, I want to talk something about before hosting a static websites and before hosting anything. Let's talk about this one. Let's talk about Storage Explorer. What is this Storage Explorer? ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि Storage Explorer है क्या. See, this Storage Explorer is a beautifully curated standalone application provided to us by Azure. Azure हमें एक एप्लीकेशन देता है जिसका नाम है Storage Explorer और rather Azure Storage Explorer, जो हमें एक एप्लीकेशन बना के देता है. दैट इज अ विंडोज एप्लीकेशन, मैकबुक एप्लीकेशन. वो तुम्हें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, वेयर यू कैन हैंडल ऑल योर स्टोरेज पार्ट. तुम्हारे स्टोरेज से रिलेटेड जितना भी चीज है ना, वो तुम्हें वो हैंडल करने देगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लेता हूँ. So who was downloading this Storage Explorer? So this is the official website where you can download the Storage Explorer. Just see क्या लिखा है इसने. Upload, download and manage Azure Storage blob files, queues and tables, as well as Azure Data Lake Storage entities and Azure Managed Disk. See, ये बस operating system select करना है and it will automatically download that particular application in your system. So I was Shreyanshi or Shreyanshi, क्या नाम था? Yes, sir. Sir, already downloaded. Already downloaded. Okay, perfect. I'm stop sharing my screen. Please reshare your screen. See, Shreyanshi has started sharing her screen. So Shreyanshi, you downloaded it from the official website that I sent you, right? Yeah. Click on this application. You have to install it. And it will open like this. This is the application. Install for me. Recommended. Next. I accept the agreement. Install. Uncheck that. अरे ठीक है, छोड़ दो. Now Shreyanshi, let it install it. In the meantime, Shreyanshi, can you please open your Azure portal? Yes, sir. Install होने दो. Go to Azure portal. And Shreyanshi, do you remember the username and ID of that particular portal, Azure portal? Yes, sir. ठीक है, चलो साइन इन करो. Shreyanshi, quickly create a resource group. Name this resource group as storage RG. Named it as storage-RG.
ईस्ट यूएस में रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ईस्ट यूएस पे रहने दो। नेक्स्ट टैग्स पे चलो, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे जाओ, अब इसे क्रिएट कर दो, ठीक है। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया, नहीं हुआ है, रुक जाओ। चलो, स्टोरेज आरजी तुम्हारे पास है। ये तुम्हारे माउंट आरजी में क्या क्या है दिखाओ तो। Nothing, sir. Yesterday अच्छा there अच्छा is a vault अच्छा, created. ये वॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ये बैकअप Yes, sir. Backup के लिए. कोई बात नहीं। चलो स्टोरेज आरजी पे, अच्छा स्टोरेज आरजी पे अब तुम्हें बनाना है एक एक जल्दी से एक स्टोरेज अकाउंट बनाओ, एक स्टोरेज अकाउंट बनाओ, उसका नाम रखना है श्रेयांशी स्टोरेज अकाउंट। Okay, sir. मैं तुम्हारा नाम सही से बोल पा रहा हूँ ना? इट्स Yes, sir. Yes, sir. श्रेयांशी। स्टोरेज आरजी पे नाम रख दो श्रेयांशी स्टोरेज आरजी या फिर श्रेयांशी स्टोरेज अकाउंट, बस परफेक्ट। लेट इट बी LRS। चलो नेक्स्ट एडवांस पे चलते हैं, नेक्स्ट नेटवर्किंग पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेटा प्रोटेक्शन, नेक्स्ट इंक्रिप्शन, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, चलो एक्टिव हो गया। एंड ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे है। श्रेयांशी, व्हाट यू जस्ट मेक एन वीएम, एक कोई भी वीएम बनाओ तो, डायरेक्टली गो टू वर्चुअल मशीन, ठीक है। एक वीएम बनाओ, एक वीएम बनाओ, एकदम बेसिक सा बनाना, कोई ज़्यादा मतलब हमें उबंटू विंडोज सब कुछ नहीं चाहिए। रिसोर्स ग्रुप अपना स्टोरेज आरजी में रहना, एंड वर्चुअल मशीन का नाम रखना कुछ भी रख देना, स्टोरेज वीएम, ठीक है। ईस्ट यूएस पे जहाँ पे रहने दे से, ट्रस्टेड लॉन्च, ठीक है ठीक है ठीक है। दिस साइज इज नॉट ऑप्शन अवेलेबल, कौन सा अवेलेबल है देख लो। चलो ठीक है, यूजर नेम कुछ भी दे दो, सिलिकन, पासवर्ड दे दो। नेक्स्ट, सब कुछ अलाउ कर दो। नेक्स्ट नेटवर्किंग, नेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये देखो डिफॉल्ट सब कुछ बना लिया अपने आप। प्रीवियस पे जाओ, प्रीवियस पे जाओ, इसको देखो, इसने वीनेट और सबनेट हम लोग पहले बनाते थे, इसने ना खुद से बना लिया न्यू डिफॉल्ट, न्यू स्टोरेज VM1 वीनेट भी बना लिया, सबनेट भी बना लिया। चलो मैनेजमेंट पे चलो, बेसिक बेसिक सब कुछ रहने दो। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस्ड, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। ये जब तक डिप्लॉय होगा, क्रिएट करो, वेट 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 फॉर अ मोमेंट, क्लिक ऑन क्रिएट। ये डिप्लॉय होगा, तब तक तुम्हारा उधर वो डिप्लॉय हो गया, स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय हो गया। वहां पे जाके कंटेनर बनाओ, माई कंटेनर, और उस पर कुछ फाइल अपलोड कर दो। कैंसिल करो, कैंसिल करो, वेट फॉर अ मोमेंट, इसे उस स्क्रीन पे आने दो जहाँ पे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। हाँ चलो, अब आ गया। अच्छा रुक जाओ, चलो अब चलो, अब चलो स्क्रीन पे चलो, ठीक है। श्रेयांशी ने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया है जिसका नाम है श्रेयांशी स्टोरेज अकाउंट। अब इसके कंटेनर्स में जाओ, अब इसके कंटेनर्स में जाओ। हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेनर यहाँ पे है नहीं, तो मैं एक बाई डिफॉल्ट एक कंटेनर में बनाता हूँ, ठीक है। एक कंटेनर बनाता हूँ, नाम रख दे इसका माई कंटेनर, और क्रिएट कर लो। प्राइवेट रहने दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनीवेज वॉट एवर यू विश, वॉट एवर यू विश, क्रिएट करो। चलो अब माई कंटेनर में जाके ना कुछ अपलोड करो यार, कुछ अपलोड करो।
स्क्रीनशॉट 1 2 कुछ भी अपलोड कर दो। चलो ठीक है, जस्ट अपलोड इट, क्लिक ऑन अपलोड। अब देखो वो कहाँ तक इंस्टॉल हुआ है। चलिए तो अपलोड तुरंत हो गया। इंस्टॉल इंस्टॉल वो जो हमने इंस्टॉल कर रहे थे, जो हमारा स्टोरेज एक्सप्लोरर नीचे इंस्टॉल चल रहा है ना नीचे में। अरे नीचे सबसे नीचे जो हम लोग अभी इंस्टॉल कर रहे थे, जो इंस्टॉल हुआ नहीं था। अरे नोटिफिकेशंस नहीं यार, इसको बंद करो। क्रोम ब्राउजर में नहीं, जो हमारा एक इंस्टॉल जो हमने अभी वो इंस्टॉल हो रहा था तब तक हम लोग ये काम करने आए थे, स्टोरेज एक्सप्लोरर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, उसके बगल वाला। हाँ उसके बगल वाला, हाँ। अच्छा, ये अभी भी यहीं पे है। ये क्या तुमने? अच्छा, चलो थोड़ा वेट करते हैं, ये इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। वेट फॉर अ मिनट, ये हो जाएगा तुरंत। This storage explorer application, this is one of the best application available for from by an any cloud service provider. ठीक है, ये स्टोरेज एक्सप्लोरर ये हेल्प करता है हमें मॉनिटरिंग में, हेल्प करता है हमें मैनेजमेंट में, ये हेल्प करता है हमें माइग्रेशंस में। माइग्रेशन समझते हो सब लोग? अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि किसी तुम्हारे क्लाइंट ने आया बोला कि अच्छा ये तुम्हारा जो सर्वर है ना, इस सर्वर को मेरे को दूसरे सब्सक्रिप्शन में मेरे को मूव करना है, या फिर उसने बोला कि नहीं ये जो पर्टिकुलर सर्वर है ना, आई वांट दैन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस सर्वर इन माय अदर रिसोर्स ग्रुप। तो तुम क्या करोगे? विद इन द सब्सक्रिप्शन भी तुम इसे माइग्रेट कर पाओगे एंड आउटसाइड द सब्सक्रिप्शन भी तुम इसे माइग्रेट कर पाओगे। वो सारी चीज हम लोग करने वाले हैं हम। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरेज एक्सप्लोरर। अभी कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ, लेट इट इंस्टॉल इट फर्स्ट। ये दिस वन इज द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। ये तुम सबको इसलिए मैं मेरा जरूरी था बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर स्टोरेज एक्सप्लोरर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन माई मैक मशीन। ठीक है, तो तुम लोग उतना रिलेट नहीं कर पाओगे कि मेरे में इंस्टॉल कैसे हुआ। सो आई यूज्ड वन ऑफ द विंडोज मशीन to let you know that how do you install storage explorer and how do you signing to that particular application so that तुम्हारे सारे डेटा वहां पे रेंडर होके दिखे। just few more minutes। this is a big application, around half a GB का application है।
इन द मीन टाइम श्रेयांशी, वो विन एससीपी भी इंस्टॉल्ड है क्या तुम्हारे लैपटॉप में? No, sir, it is not installed. अच्छा, मैंने जो लिंक भेजा था ना उसे वो भी इंस्टॉल कर लेना। अभी नहीं करना, मैं जब थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, देन यू कैन डू इन द मीन टाइम। तो बस इसे इंस्टॉल करके रख लेना, ठीक है? यू हैव द लिंक राइट? चलो फिनिश करो। चलो इसे ओपन करो अब। चलो बहुत बढ़िया। सो दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर एप्लीकेशन। ये करता क्या है ये मैं सब कुछ अभी बताऊंगा। क्लिक ऑन द अकाउंट सेक्शन, लेफ्ट साइड में नीचे जो अकाउंट है, हाँ चलो क्लिक ऑन दैट। साइन इन विथ अज्योर, साइन इन विथ अज्योर, ठीक है? ये पूछेगा कौन से अज्योर इन्वायरमेंट में तुम्हारा साइन इन करना है, अज्योर यूएस गवर्नमेंट हो या चाइना हो या नॉर्मल अज्योर हो। तो नॉर्मल अज्योर, नेक्स्ट। चलो श्रेयांशी, you have to just log in with this particular account. Authenticated. Please come back to the application. Back to the application. Yeah. ठीक है? Your browser should be now open and redirect you to login, waiting for authentication. तुम authenticate हो चुकी हो, ठीक है? Now you are signed in. Now you are signed in. Click on the default directory. Default directory को drop down करो. Click on the default directory. See, the tenant is currently filtered out. अब इसके बगल में जो तुम्हारा सेटिंग्स का आइकन बना हुआ है ना, इसके जस्ट बगल पे, हाँ उसे चेक मार्क करके हाँ अनफिल्टर करो। क्लिक ऑन अनफिल्टर। सी, अब ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन को लोड करेगा, वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू हैव। आई गेस श्रेयांशी यू हैव द स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। Yes, sir. ठीक है, ये देखो ये तो वहां पे बता दिया कि अज्योर फॉर स्टूडेंट्स तो इसके पास है। क्लिक ऑन ओपन एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन ओपन एक्सप्लोरर, ठीक है? अब इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो जिसमें की का बना हुआ है, हाँ ड्रॉप डाउन इट, ठीक है? अब यहाँ पे तुम देखो, तुमने अभी एक स्टोरेज अकाउंट बनाया था जिसका नाम था श्रेयांशी स्टोरेज अकाउंट। ड्रॉप डाउन इट। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे, क्लिक ऑन, हाँ 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 बिल्कुल। सो यू हैव कंटेनर्स, यू हैव फाइल शेयर्स, यू हैव क्यूज, यू हैव टेबल्स इनसाइड इट। और श्रेयांशी ने कंटेनर्स के अंदर एक अपना कंटेनर बनाया था जिसका नाम था माई कंटेनर, आई गेस। चलो माई कंटेनर भी आ गया। अब इस माई कंटेनर के अंदर जिसने तुमने जो अभी फाइल अपलोड किया था, क्लिक ऑन दैट। सी, देखो ये कितने सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमें यहाँ से अपलोड, डाउनलोड, प्रीव्यू, कॉपी, पेस्ट, हम जहां से यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं हम यहाँ से अपने कंटेनर्स में कॉपी करके रख सकते हैं। हम हो सकता है अपने फाइल शेयर्स के कुछ चीज को हम यहाँ से कॉपी करके रख सकते हैं। श्रेयांशी क्लिक ऑन अपलोड, क्लिक ऑन अपलोड a file, upload file and upload something, Shreyanshi, from the application. ऊपर ऊपर ऊपर, नो फाइल सेलेक्टेड, नो फाइल सेलेक्टेड, क्लिक करो। हाँ कुछ भी, स्क्रीनशॉट 26, चलो बढ़िया। क्लिक ऑन ओपन एंड क्लिक ऑन अपलोड, क्लिक ऑन अपलोड। चलो ये देखो, तुम नीचे जो है ना सारे एक्टिविटीज देख सकती हो कि ये ट्रांसफर हो रहा है अभी श्रेयांशी, ये चलो ये ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। अब ये स्क्रीनशॉट 27.png हमारे स्टोरेज एक्सप्लोरर एप्लीकेशन पे तो दिख रहा है। तो श्रेयांशी, कैन यू गो बैक टू योर पोर्टल एंड चेक वहां पे वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है? क्लिक ऑन रिफ्रेश, क्लिक ऑन रिफ्रेश। चलो, सो इज दिस क्लियर एवरीवन कि ये जो हमारा, हमने जितने भी स्टोरेज से रिलेटेड काम कर रहे थे हम वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। क्लिक ऑन द स्टोरेज एक्सप्लोरर श्रेयांशी, हाँ, एंड गो टू द डिस्क सेक्शन। डिस्क सेक्शंस में तुम्हारा कौन से स्टोरेज, कौन सा भी तुम्हारा करंट रिसोर्स ग्रुप था, स्टोरेज रिसोर्स, क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन दैट। चलो, कैन एनीवन टेल ये क्या है? what disk is it? Can anyone voluntarily, कोई भी बताओ। श्रेयांशी तुम बताओ ये क्या डिस्क है? अपार्ट फ्रॉम श्रेयांशी प्लीज बी एक्टिव। रोहन कुमार,
रोहन कुमार, प्रियाव्रत। सर VM1 का OS डिस्क है। एग्जैक्टली जो हम वो VMs बनाते हैं ना, वो VMs के ये पर्टिकुलर जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिस्क बनता है ना, क्योंकि उसके पास भी तो अपना रोहन माइक इज नॉट वर्किंग। रोहन यू शुड गेट योर माइक फिक्स्ड यार। You should get your mic fixed and you shouldn't join to the meetings whose mic is not working. चलो सो बेसिकली ऑल ऑफ यू ये हुआ क्या हमारा, जो हमने VMs बनाते हैं ना, जब भी हम लोग VM बनाते हैं तो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क बनता है। ये देखो ये वो डिस्क रहता है जिसका साइज देखो 127 GB है, प्रीमियम SSD है। ठीक है, अब तुम देखोगे यहाँ पे इसको भी कॉपी करने और पेस्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ भी अपलोड करने का बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरेज एक्सप्लोरर। यू कैन कॉपी अ पर्टिकुलर स्टोरेज डिस्क। तुम यहाँ से इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क को कॉपी करके दूसरे रिसोर्स ग्रुप में भी पेस्ट कर सकते हो। ये इतना इतना पावरफुल होता है ये टूल। अब इसके बारे में और बताएंगे मैं, अभी मैं और बताऊंगा। तो इन द मीन टाइम श्रेयांशी, यू कैन स्टॉप शेयरिंग एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट WinSCP एंड कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंगली। तब तक मैं सर stop sharing. Yeah, thank you. चलो, so everyone, स्टोरेज एक्सप्लोरर, ये रहा मेरा स्टोरेज एक्सप्लोरर। कहाँ गया? सी, ये दिख रहा है स्टोरेज एक्सप्लोरर। नितिश, फ्री ट्रायल। I don't have any, I do have storage accounts. I had a storage account, yeah. My storage account for second, अभी मैंने जस्ट बनाया था। इसके अंदर कंटेनर्स में, ब्लॉक कंटेनर्स में आई हैव माई कंटेनर, और उस माई कंटेनर में मैंने कुछ अपलोड किया था। देखो वो मेरे में भी यहाँ पे शो करेगा। सी, दिस वाज द थिंग दैट आई अपलोडेड टू दिस पर्टिकुलर कंटेनर। अब चलो बैक टू, चलो, लेकिन देखोगे मैं मेरे स्टोरेज आरजी पे देयर इज नो डिस्क, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ VM बनाया ही नहीं है। ठीक है, VM बनाने से पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, हम अपने स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं। दिस वन इज माय स्टोरेज अकाउंट, राइट? ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है, माय स्टोरेज अकाउंट फॉर सेकंड। अगर तुम इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें कहीं एक व्हाट डू यू से कुछ मिलेगा रिगार्डिंग स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, वेयर इज इट? स्टैटिक वेबसाइट किसी को दिख रहा है क्या? सर डेटा मैनेजमेंट में नीचे। डेटा मैनेजमेंट में नीचे में हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट करके कुछ बना हुआ है। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, अभी ये डिसेबल्ड है, मैं इनेबल करता हूँ। ठीक है, ये बोलता है इंडेक्स डॉक्यूमेंट का नेम क्या रहेगा, मतलब तुम्हारे लैंडिंग पेज का नाम क्या रहेगा। मैं बोलता हूँ उस लैंडिंग पेज का नाम रहेगा index.html। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। सी, ये बोला, ये क्या क्या बता रहा है। अब देखो, अब जैसे ये इनेबल हो गया तो बोला अज्योर स्टोरेज कंटेनर एक आपके लिए होस्ट कर चुका है स्टैटिक वेबसाइट, जो कि वेब कंटेनर के अंदर है। और इसका प्राइमरी एंड पॉइंट मतलब इसका जो URL है जिससे हम इस पूरे वेबसाइट को फेच कर सकते हैं, उस URL का ये रहा आपके पास ID, सॉरी द URL एंड पॉइंट। आई एम सेंडिंग यू द URL एंड पॉइंट। हिट करो और देखो क्या हो रहा है। सबका ये आ रहा है, रिक्वेस्ट कंटेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है, क्योंकि हमने अब तक कंटेंट डाला ही नहीं ना। कंटेंट हमें डालना कहाँ है? हमारे पास एक वेब कंटेनर करके बना होगा इनसाइड माय स्टोरेज कंटेनर। ठीक है, अब हमारा स्टोरेज कंटेनर कहाँ है? ये रहा डेटा स्टोरेज कंटेनर्स। अब इसके अंदर इसने बोला कि मैंने वेब करके एक कंटेनर बना दिया है। तो चलो, इसने बना तो दिया है, अब इसके अंदर कुछ कंटेंट तो नहीं है। अब हम अपलोड करेंगे, अगर यहाँ से अपलोड करने जाए तो आई कैन जस्ट अपलोड अ फाइल। ठीक है, इसके लिए अब हम स्टोरेज एक्सप्लोरर को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, वो वेब करके नहीं है, तो आई विल रिफ्रेश इट। ठीक है, आई विल रिफ्रेश इट इनसाइड माय
account storage inside my blob containers, I have now web. ठीक है, अब ये वेब करके यहाँ पे मेरा तो बना हुआ है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, जिसके अंदर अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास अपलोड फोल्डर का भी तो ऑप्शन है। आई कैन डायरेक्टली अपलोड अ फोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ, मैं फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, आई बी अपलोडिंग। ये देखो, एक डिजिटल एजेंसी HTML टेम्पलेट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं ऐसे ओपन करता हूँ। ठीक है, और ये मेरे रूट डायरेक्टरी में कॉपी होके आ जाएगा। मैं क्लिक ऑन अपलोड करता हूँ। चलो, तो दिस डिजिटल एजेंसी HTML टेम्पलेट तो यहाँ से कॉपी हो गया, लेकिन इसके रूट पे तो ये फोल्डर कॉपी हुआ है। ठीक है, हमें इसे इसके कंटेंट्स को यहाँ से कॉपी करके इसके रूट पे लेके आना है। मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करूंगा। आई विल बी मूविंग बैक टू माई रूट फोल्डर और मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ फाइल्स बिटवीन कंटेनर्स, बिटवीन फाइल शेयर्स, बिटवीन क्यूज। ये सब चीज कितना आसान हो गया हमारे लिए यूजिंग दिस ब्यूटीफुल एप्लीकेशन जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। ठीक है, लेट इट कंप्लीट इट फॉर द टाइम बिंग, लेट इट कंप्लीट इट। अब ये स्टार्ट हो गया 3%, 7%, 11। चलो, नाउ रीहीट दैट वेबसाइट। उस वेबसाइट को फिर से रिविजिट करो। अब बताओ वो क्या आ रहा है वहां पे, एवरीवन? अरे सबका ये आ रहा है? हाँ सर, ये वाला पेज आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के कारण क्या हुआ, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के कारण क्या हुआ, एक तो हमें एंड पॉइंट भी मिल गया कि ये रहा तुम्हारा एंड पॉइंट। अगर मान लो तुम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, अगर एक स्टैटिक वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, या फिर एक बेसिक सा जिसमें तुम्हारा रेज्यूमे रहे, यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, तुम कुछ ब्लॉग्स पब्लिश करना चाहते हो, देन यू हैव अ यूआरएल। तुम्हारे पास एक यूआरएल है देने के लिए, एंड दैट टू, तो अज्योर ने इसके ऊपर एक SSL सर्टिफिकेट भी लगा दिया। ये लॉक सिंबल तभी आता है जब हमारे पास SSL सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, सो नाउ यू हैव एन URL, यू कैन होस्ट एनीथिंग, यू कैन राइट डाउन एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड द अपलोड द कंटेंट्स इन दैट वेब कंटेनर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑफ द स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पार्ट। क्लियर हुआ सबको? सर ये जो हम लोग को यूआरएल मिलता है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का भी ऑप्शन है। ये तो जब हम बना रहे थे वहां पे लिखा होगा दिस विल बी योर व्हाट डू यू से, मतलब अभी के लिए ये तुम्हारा यूआरएल रहेगा। यू कैन इवन चेंज इट। अगर तुम्हारे पास खुद का अपना कुछ यूआरएल है एंड यू वांट टू गिव इट, यू कैन गिव इट। लाइक सर अपना अगर पोर्टफोलियो के लिए जैसे अपना डोमेन नेम हम लोग डालने का अगर मन हो। हाँ, तो डोमेन नेम तुम्हें परचेज तो करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, डोमेन नेम तुम्हें परचेज तो करना पड़ेगा। अब परचेज करोगे जब तुम्हारे पास उस डोमेन का पूरा तुम्हारे पास एक्सेस आ जाएगा, दैट देन यू हैव द ओनरशिप, देन यू कैन जस्ट सर्च ऑन द गूगल दैट हाउ डू आई चेंज द इनिशियल यूआरएल गिवन टू अ स्टैटिक वेबसाइट बाय अज्योर टू माय पर्सनल डोमेन, या फिर टू माय ओन्ड डोमेन। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा? यस सर। ठीक है, तो चलो, अभी तक के ये सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा कि इसने मेरे को एक एंड पॉइंट भी दे दिया, एंड दैट टू इट्स सिक्योर्ड, कि दैट टू इस पे अभी SSL सर्टिफिकेट आ चुका है। ठीक है, इजी एवरीवन? अरे इजी लगा ये? तो भाई कुछ बोलोगे नहीं तुम लोग? यस सर। ये सर। ठीक है, चलो, अब स्टोरेज एक्सप्लोरर का हम लोग और भी यूजेस देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला यूज देखने के लिए, हम लोग एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने होम पे, हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। ठीक है, आई विल बी क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन।
Azure virtual machine, क्लिक ऑन Azure virtual machine। मैं स्टोरेज आरजी पे रखता हूँ। इस वर्चुअल मशीन का नाम रहेगा उबंटू VM। ठीक है, रीजन मैं ले लेता हूँ सेंट्रल US। अच्छा ये लेगा नहीं, अभी ले लेगा। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। ये ले लो। ठीक है, आई विल बी लॉगिंग इट यूजिंग पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड से मैं लॉग इन करूंगा। आई वोंट बी यूजिंग दैट .pm फाइल। यूजर नेम वुड बी silicon and my password would be password@123। श्रेयांशी वो हो गया क्या? यस सर, वो डाउनलोड कर ली। हाँ उसको इंस्टॉल भी कर लो। नेक्स्ट आई गो टू द डिस्क। ये प्लेटफॉर्म मैनेज रहने दो। नेक्स्ट नेटवर्किंग, नेक्स्ट मैनेजमेंट। ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर लेगा वीनेट सबनेट जो हम लोग इतना दिन से बना रहे थे। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाया है जिसका नाम है जिसका हमने नाम दिया है उबंटू वर्चुअल मशीन। उस उबंटू वर्चुअल मशीन को हम लोग एक बेसिकली एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। लेट इट डिप्लॉय फर्स्ट। चलो डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। आई गो टू माय रिसोर्स। अभी तक ये वेब सर्वर बना नहीं है, हमारा ये वर्चुअल मशीन वेब सर्वर बना नहीं है, इसके एक पब्लिक आईपी मिला है। आई विल हिट द पब्लिक आईपी एंड यू कैन सी दैट ये वेब सर्वर बना नहीं है तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं पहले इसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, आई विल कॉपी दिस कमांड। मैं टर्मिनल खोलता हूँ अपना। ठीक है, लेट मी नो व्हेन इट इज विजिबल क्लियरली टू यू। ठीक है इतना? हाँ सर। ठीक है चलो। अब मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया है, हमारे पास वो प्राइवेट की है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो कमांड रहेगा ना, कमांड ऑलमोस्ट सिमिलर रह जाएगा। सॉरी, कॉपी करो इसे। और ये बस प्राइवेट की पाथ की जगह, प्राइवेट की पाथ की जगह यहाँ पे बस लिख दो -p। मतलब हम लोग यूजिंग पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं। SSH-i स्पेस -p स्पेस silicon@ जो भी तुम्हारा वो आईपी वहां से कॉपी हुआ था। ठीक है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट, यस। चलो ये पासवर्ड मांग रहा है, हमने पासवर्ड सेट किया था PASSWORD@123। आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। सी आगे हम VM के अंदर विदाउट यूजिंग वो जो PM फाइल हम लोग आज यूजर ने पासवर्ड से हमने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। सो दिस इज अंडर silicon@ubuntu VM। ठीक है, आई विल स्विच टू सुपर यूजर। ठीक है, आई विल डू CD and go to the root folder। ठीक है, now I will install a web server named Apache। so इसका कमांड होता है apt install Apache 2। yes, चलो आई थिंक सो आवर सर्वर इज नाउ रेडी। अगर हम अपने
अगर हम अपने आईपी को हिट करें, चलो देखो ये वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, उबंटू अपाचे 2 ये सब कुछ आ गया, ठीक है। सो आई विल बी गोइंग टू माई cd स्लैश where, जिसके अंदर हमारा वो index.html रहता है, where स्लैश www स्लैश html, ठीक है। यहाँ पे मैं ls करूंगा, देन आई विल बी हैविंग index.html, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ पहले, ठीक है। वहां पे index.html है, ठीक है। मैं इस index.html को रीराइट करता हूँ, echo hello I am Nitish from Ubuntu server, ठीक है। इसे मैं इंसर्ट करता हूँ index.html में। उस पेज को रिफ्रेश करो सब लोग, तो उस पेज को रिफ्रेश करो, इस पेज को रिफ्रेश करो एंड सी वेदर आई एम गेटिंग दिस वन और नॉट, एवरीवन। सबको आ रहा है ये? जी सर। ठीक है, चलो। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने हेलो आई एम नितिश फ्रॉम उबंटू सर्वर, हमने एक सर्वर बनाया और उस पर हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। तो अब हमने जो ये वेब सर्वर बनाया है, ये हम अपने अपने स्टोरेज एक्सप्लोरर पे देखते हैं ये वेब सर्वर का डिस्क कहाँ गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई गो टू द स्टोरेज RG रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक डिस्क बन के रेडी है, और ये वही डिस्क है, ये वही डिस्क है जो मेरे उबंटू VM से अटैच्ड है। दिस इज द होल ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन जिसको मैंने बनाया है, ठीक है। एवरीवन क्लियर? एवरीवन दिस व्हाट इज दिस पर्टिकुलर Yes. डिस्क, मैं 2 बार बता चुका हूँ, यस सर। ठीक है। तो चलो अब ऐसे तो हम रखेंगे नहीं ना कि हमारा ये देखिए हेलो आई एम नितिश फ्रॉम उबंटू सर्वर। तो इस उबंटू सर्वर पे भी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस उबंटू सर्वर पे एक बढ़िया सा वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल करके डाउनलोड करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है WinSCP। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? श्रेयांशी प्लीज स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन, ठीक है। Yes, sir. देखो WinSCP से होता क्या है ना, WinSCP से तुम अपने लोकल मशीन से अपने सर्वर पे मतलब रिमोट सर्वर पे तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोई भी फाइल को, ठीक है। श्रेयांशी ओपन WinSCP, सो दिस इज WinSCP, इसका लिंक मैंने भेज दिया था पहले ही, ठीक है। सो हाउ यू कैन डू दिस कि तुम एक नए साइट को क्रिएट करोगे तुम्हारे LHS पे, इट विल बी योर ओन लोकल मशीन, and on the LHS on the RHS would be your remote server. तुम n number of remote servers यहाँ पे ऐड कर सकते हो। श्रेयांशी add that IP, I'm just telling out 20.12 20.176.225. Give the username as silicon and password is सब स्मॉल में लिखना PASS WORD @123. Click on login. Yes. चलो, सो नाउ देखो ये तुम्हारे जो LHS में है ना, ये LHS श्रेयांशी, दिस इज योर लोकल मशीन। तुम्हारे लोकल मशीन का जो भी डेटा है वो तुम्हारे इस साइड पे दिख रहा है। एंड हाँ ठीक है, उतना स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, नहीं, ठीक है। सो दिस ऑल असाइनमेंट char.c char.exe, these all are your local machines data. बट इधर जो तुम्हारा RHS में अभी जस्ट बना होम सिलिकन, दिस इज बेसिकली द वेब सर्वर और रादर द उबंटू वर्चुअल मशीन जो अभी तुमने अभी जस्ट बनाया है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन ऑफ सिलिकन, उसके जस्ट ऊपर है यहाँ। गो टू द रूट फोल्डर, गो टू द रूट,
इसमें हमारा वो जो var फोल्डर था जिसके अंदर हमारा www है, नीचे जाओ, नीचे जाओ, क्लिक ऑन var, क्लिक ऑन www, क्लिक ऑन html, सी एनीवन, इस html index.html के अंदर क्या होगा, क्या लिखा हुआ होगा? Sir, hi, this is Nitish. चलो उसे ओपन करो, उसे ओपन करो। अच्छा तुमने डाउनलोड कर लिया, इसे डाउनलोड नहीं करना, उसे बस ओपन करना है या एडिट करो, इसे क्रॉस करो, ऊपर से क्रॉस करो, ठीक है। ट्राई एडिटिंग इट, क्लिक ऑन एडिट, ऊपर में एडिट है, डाउनलोड के बगल में, हाँ चलो, फिर तुमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐड करो, हेलो अगेन ऐड कर दो, डॉट हेलो अगेन, ठीक है। इसे सेव करने की कोशिश करो, चलो ओके करो, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आता है, कैन नॉट ओवरराइट रिमोट फाइल। ये जो var के अंदर ये index.html है, ये बताओ क्यों फेल किया, कोई भी बताओ यार क्यों फेल किया, एनीवन, एनी वन ऑफ यू, ये फेल क्यों किया, परमिशन डिनाई क्यों हुआ? कोई चैट पे आंसर भी लिख सकते हो। आयुष, डिड यू नो, डू यू नो दैट व्हाई इट फेल्ड? आयुष, आयुष, आर यू देयर? Me? या योर नेम इज ओनली आयुष ना? No, sir. Two are there. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यू 21BC B33। So, देखो हुआ क्या ना कि हमने ना एक रूट, जिसका ओनर रूट है, हमने एज अ सिलिकन यूजर यहाँ पे ऐड किया, हमने यहाँ पे ऐड किया है, और हम एक रूट यूजर के एक पर्टिकुलर फाइल को अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहें ना, तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट कि अब हम लोग ये काम करते हैं, हम सिलिकन यूजर पे ही क्रॉस इट, वो ड्रॉप डाउन पे फिर से क्लिक करो, हाँ, गो टू द रूट, ठीक है। ना गो टू होम, होम नीचे होम है, नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, अरे ऊपर ही था होम, और ऊपर होम, ठीक है। इसके अंदर सिलिकन है, क्लिक ऑन सिलिकन, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो श्रेयांशी, जस्ट डाउनलोड सम टेम्पलेट वेबसाइट एंड जस्ट कॉपी पेस्ट ओवर हियर। कुछ डाउनलोडर ऑलरेडी नहीं है क्या तुम्हारे पास? कर लो यार, डाउनलोड फ्री टेम्पलेट। अरे यहाँ से नहीं, अब वापस अब वहां पे चलो, अपने विन एससीपी पे चलो, विन एससीपी, अपने एलएचएस पे, अपने एलएचएस पे, अपने एलएचएस पे जाओ जहाँ पे तुमने डाउनलोड किया है, डी पे होगा, गो टू डाउनलोड्स,
हाँ, इसे कॉपी करो। अरे उस पूरे फोल्डर को कॉपी करो ना। बैक जाओ, नेविगेट बैक। अच्छा, ऊपर में ही वो बैक का ऑप्शन है, और हाँ हाँ, इसको कॉपी करो, या फिर ड्रैग करो, इसे ड्रैग करके इधर लेते आओ। हाँ हाँ, जस्ट ड्रॉप इट। ठीक है, ओके करो। चलो, वेट फॉर अ मोमेंट। ये इतना बड़ा फाइल था क्या? केक शॉप वेबसाइट। 83% डन। चलो, इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ। चलो ठीक है, ये यहाँ पे कॉपी होके आ गया। श्रेयांशी, यू कैन स्टॉप शेयरिंग, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। ठीक है। अरे ये WinSCP का बस काम इतना ही है ना कि ये हेल्प्स इन कॉपी एंड कॉपिंग स्टफ फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। ये काफी आसान कर देता है चीजों को। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। ठीक है, इफ सपोज आई गो टू माई अगेन टू द रूट डायरेक्टरी। एवरीवन, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? ठीक है, आई एम करेंटली ऑन माई रूट डायरेक्टरी। इफ सपोज आई गो टू cd/home/silicon। ठीक है, यहाँ पे मैं ls करता हूँ, तो जो वहां पे उसने कॉपी पेस्ट किया था ना, वो मेरे यहाँ पे आ गया है। केक शॉप वेबसाइट टेम्पलेट, ये मेरे को यहाँ पे आ गया है, बिकॉज दिस इज द सेम वर्चुअल मशीन जो मैंने वर्चुअल मशीन का एक्सेस श्रेयांशी को दिया था। ठीक है, आई आई विल नेविगेट बैक टू दिस cd/, मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, अच्छा, cd। ठीक है, ये सपोज आई डू ls, यहाँ पे मेरे पास सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आने अब इसको जो है मेरे को उठा के लेके जाना है किसके अंदर, इस var www/html के अंदर लेके जाना है। बट उसके अंदर मेरे पास एक ऑलरेडी index.html है, तो पहले हम उससे जाके डिलीट करते हैं। ठीक है, आई गो टू cd/var/www/html, और यहाँ पे जो मेरा index.html है, इसको हम करते हैं रिमूव। रिमूव के लिए कमांड होता है rm -f index.html। चलो, ये हट गया है। अगर हम अपने सर्वर को रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, index.html 1 यहाँ पे है ही नहीं। आई विल गो बैक टू माई इसके अंदर चलते हैं, होम के अंदर चलते हैं, और इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स है ना,
ये जितने भी कंटेंट्स है मेरे को बस यहां से कॉपी करके उस var/www/html में कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा cp, cp स्टैंड फॉर कॉपी, cp हाइफन कैपिटल R स्टार मार्क मतलब कि तुम्हारे अंदर जितने भी कंटेंट्स है उसको तुम रूट के अंदर, var के अंदर, www के अंदर, html के अंदर पेस्ट कर दो, यहां से कॉपी करके वहां पे डाल दो। ठीक है, मैं जैसे ही कमांड रन करूंगा मेरे अंदर वो ये यहाँ के जितने भी कंटेंट्स है ना वो वहां पे चले गए होंगे। इफ सपोज आई रिफ्रेश दिस एप्लीकेशन और रिफ्रेश दिस, सी आ गया, अरे एवरीवन आ गया यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बन के। हाँ सर। ठीक यस है, सर। हिट इट ऑन योर एंड एज वेल एंड जस्ट क्रॉस चेक भाई ये आया कि नहीं आया। सुपर क्रिस्पी केक जोन, चलो those who want to order then they can place the order from here। बर्थडे केक $99, $99 इज इक्वल टू 8,000 रुपया होता है, वाह। ठीक है, चलो सो वी आर ऑल डन विथ अ पर्टिकुलर वेब सर्वर जो कि उबंटू में हमने बनाया है और हमने WinSCP का यूज करके हमने कॉपी पेस्ट किया ऑफ ऑल द कंटेंट्स। ठीक है, अब ये चीज तो समझ गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक क्लाइंट आया, ये रहा मेरा स्टोरेज अकाउंट, ये रहा मेरा उबंटू VM डिस्क, जो इस डिस्क पे अभी करंटली वो सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, वेब सर्वर भी है, वो केकरी शॉप का यहाँ पे बना हुआ भी है, सारा वेबसाइट बना हुआ है। अगर एक क्लाइंट आया बोला कि भाई आई वांट एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस पर्टिकुलर VM इनटू माय अदर रिसोर्स ग्रुप, अगर मान लो तुम्हारे पास मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप है ना, तो वहां पे इसको तुम कैसे बनाओगे, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं विद इन द सेम रिसोर्स ग्रुप इसको मैं रेप्लिका करता हूँ। ठीक है, रेप्लिका कैसे करूंगा, फॉर एग्जांपल स्टोरेज RG में अभी एक ये है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी करके यहीं पे इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करके मैं इसका नाम दूंगा, इसका नाम दूंगा कॉपीड उबंटू डिस्क। ठीक है, मैं इस पूरे OS ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क को कॉपी किया, सेंट्रल US लोकेशन दिया, अवेलेबिलिटी जोन नन है, प्रीमियम SSD यही रहने देता हूं और मैं पेस्ट करता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। चलो, मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क कॉपी हो गया जिसका नाम है कॉपीड उबंटू डिस्क। ठीक है, अब मैं अपने अज्योर पोर्टल पे चलता हूँ, अपने अज्योर पोर्टल पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिस्क्स, ये देखो डिस्क्स। एज सून एज आई रिफ्रेश इट, अच्छा आया नहीं अभी तक क्या, क्लिक ऑन रिफ्रेश डिस्क्स। थोड़ा वेट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, विद इन सम टाइम वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। चलो सी, हमने जो वहां पे ये कॉपीड उबंटू डिस्क बनाया था वो हमारे यहाँ पे भी आ गया। एवरीवन ऑन द सेम पेज, प्लीज इंटरैक्ट गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यस पढ़ रहे सर। हैं। यस ठीक है? सर। सब लोग मेरे साथ रहो एंड प्लीज ट्राई टू इंटरैक्ट, प्लीज म्यूट मत रहो, इवन दो इफ यू आर इन होम प्लीज इंटरैक्ट विथ मी बिकॉज आई एम नॉट हेजिटेटिंग टू इंटरैक्ट विथ यू ऑल। ठीक है, चलो अब देखो हमने यहाँ पे एक कॉपीड उबंटू डिस्क यहाँ से जो हमने कॉपी करके यहीं पे पेस्ट किया था, हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक कॉपीड उबंटू डिस्क यहाँ भी आके बन गया। हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखते हैं इसके पास ऑप्शंस क्या क्या है। इसके पास ऑप्शंस है कि तुम यहाँ से क्रिएट VM कर सकते हो, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम से तुम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। हम चलो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एक। ठीक है, ये सब कुछ ले लेगा स्टोरेज RG, ये सब कुछ नहीं लेने देगा, ये सब इसलिए लेने देगा क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी कंटेंट्स है ना वो ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, उसको पता है कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमें कुछ भी लेने नहीं देगा, बस हमें यहाँ पे बस इतना है कि हमें इसे नाम देना पड़ेगा। मैं इसे नाम देता हूँ कॉपीड VM। ठीक है,
लेट इट बी दिस वन. सारे पोर्ट्स अलाउ कर देता हूँ. HTTPS, next ticks, next networking, next monitoring, next advanced, next review and create. Create, sir. अच्छा, create, sorry. हमारे कॉर्पोरेट में एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं मंडे ब्लूज. किसी को पता है इसके बारे में? कभी नाम सुने हो मंडे ब्लूज का? No, sir. अच्छा, अब जब तुम लोग कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे ना आज से 2 साल बाद, तब पता चलेगा कि मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद 2-3 सैटरडे संडे वीकेंड मनाने के बाद मंडे को जब वापस काम करने बैठते हैं ना, तो कैसा लगता है? तो लोग मंडे ब्लूज का नाम नहीं सुने हो यार? मंडे ब्लूज मीनिंग, the Monday blues are when you feel down at the start of the week. You feel anxious, depressed and have a sense of dread about Mondays. ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट टर्म है जिसको बोलते हैं मंडे ब्लूज. चलो, डिप्लॉयमेंट भी मेरा रेडी हो गया. ठीक है, आई गो टू माई रिसोर्स. ठीक है, अब हमको इसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है. हमारे पास एक पब्लिक आईपी मिला है जिसका आईपी एड्रेस है 40.1122 जो भी है. हम इसको कॉपी करते हैं और इस कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड बिहेवियर? क्या होना चाहिए बताओ? एनीवन गेस करो यार. कि हमने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करके एक दूसरे वर्चुअल मशीन पे हमने एक क्रिएट कर दिया. तो अगर हम इसके पब्लिक आईपी को हिट करेंगे तो क्या होना चाहिए? सर केक शॉप आएगा. केक शॉप आएगा. चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है. भाई देखो, ये तो पूरा केक शॉप उठ के यहाँ पे आ गया. मतलब ये जो भी हमारा इस मशीन पे था 20.12 वाले मशीन पे था, ये पूरा उठ के हमारे 40.122 पे भी आ गया और ये एग्जैक्ट रेप्लिका बन के यहाँ पे आ गया हमारे पास. देखा, ये क्लियर हुआ कैसे हमने माइग्रेट किया विद इन सब्सक्रिप्शन. एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने इस पूरे मशीन को और रादर इस पूरे वर्चुअल मशीन को हमने रेप्लिका कर दिया. एवरीवन समझे? Yes, sir. अगर हमें अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट ये है, अगर तुम्हारे क्लाइंट ने बोला कि इसका जो आईपी है ना, इसका भी वही आईपी होना चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो डू दैट. लेकिन इसके लिए तुम्हें शायद कुछ सपोर्ट से बात करना पड़ेगा कि दैट मेरे पास 2 वर्चुअल मशीन है, आई वांट सेम आईपी फॉर बोथ द वर्चुअल मशीन्स. उसके लिए तुम जाओगे अपने अज्योर पोर्टल पे और यहाँ पे हेल्प सेक्शन या फिर कुछ ऐसा होगा. ये क्या है? ये फीडबैक के लिए है, सपोर्ट फॉर ट्रबल शूटिंग. ठीक है, तुम इसको बता सकते हो कि तुम्हें क्या सपोर्ट चाहिए एग्जैक्टली. तो उसके लिए जैसा भी होगा, बट यू शुड ऑल्सो, अगर तुम अज्योर पोर्टल के सारे अगर तुम ये सर्विसेज को जानते हो, देन यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू सपोर्ट देयर कस्टमर केयर. ठीक है, क्योंकि अगर तुम बहुत बड़े डेवलपर भी बन जाओ ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें उन्हें कॉन्टैक्ट करने का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, सो यू शुड नो दैट हाउ टू सपोर्ट. अब सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है. यू कैन जस्ट डायरेक्टली सपोर्ट कि सर मेरे पास 2 वर्चुअल मशीन है, आई वांट द सेम आईपीस फॉर बोथ द वर्चुअल मशीन्स. अब देखो हमने कॉपी तो कर दिया यहाँ पे. अब चलो, अब एक क्लाइंट आया. अब मान लो एक क्लाइंट आया. ठीक है, एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरा एक पार्टनर है, उसके पास सब्सक्रिप्शन 1 मान लेता है इस पार्टनर के, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे केक शॉप बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे केक शॉप बना हुआ है उसका. अब ये इस पार्टनर का केक शॉप बना हुआ है. ठीक है, एक दूसरा पार्टनर आया. ठीक है, उसके पास सब्सक्रिप्शन 2 है और ये बोला ना, ये पूरा हमको ये केक शॉप वाला जो ये है मेरे को अपने में भी चाहिए. अभी तक हमने क्या किया, हमने विद इन सब्सक्रिप्शन कॉपी तो कर लिया. अब क्या हम आउटसाइड दिस सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन 1 से सब्सक्रिप्शन 2 पे कॉपी कर सकते हैं क्या, फॉर 2 डिफरेंट रिसोर्सेज? चलो अब वो चीज ट्राई हम लोग करते हैं. अब वो ट्राई करने के लिए आई विल बी हेडिंग बैक टू माई स्टोरेज एक्सप्लोरर. अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ. श्रेयांशी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. श्रेयांशी, आई एम गिविंग यू द रिमोट कंट्रोल टू माई मैकबुक. ठीक है, Okay, sir. श्रेयांशी कहाँ गई? हाँ ठीक है, श्रेयांशी, you will be having the remote control of my machine right now. Just try moving the cursor. ये तो मूव कर रही हो ना?
हाँ Yes, sir. ठीक है, तो श्रेयांशी क्लिक ऑन द अकाउंट पार्ट, श्रेयांशी क्लिक ऑन द अकाउंट्स पार्ट ऑन द टॉप लेफ्ट, नीचे नीचे नीचे, अरे ऊपर 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 साइड में सेटिंग्स के ऊपर है अकाउंट। हाँ Yes, sir. ठीक है, एक करो साइन इन, करो साइन इन विद अज्योर करो। ठीक है, अज्योर है, चलो नेक्स्ट करो। चलो यूज अनदर अकाउंट, यूज अनदर अकाउंट। ठीक है, और श्रेयांशी तुम अपना यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालो एंड डोंट सेव इट ऑन माय कंप्यूटर। Okay, sir. क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, नोटिफिकेशन भेज दो। चलो यू आर ऑथेंटिकेटेड, गो बैक टू द अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। अच्छा लीव इट, मैं जाता हूँ। ठीक है, सो श्रेयांशी you don't remote control it, now I have an access, see I will unfilter it, मैं श्रेयांशी को देखता हूँ कि इसका कौन सा सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब देखो दो चीज यहाँ पे ऐड हो गए हैं, हमारे मेरा भी अकाउंट है नितिश 3435 एंड आई हैव श्रेयांशी एज वेल। ठीक है, अब श्रेयांशी के मैं एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो दिस इज श्रेयांशी इनसाइड योर स्टोरेज आरजी तुम्हारे पास एक ऑलरेडी एक डिस्क यहाँ बना हुआ था, राइट? Yes, sir. श्रेयांशी तुम एक काम करो, यू गो टू योर अज्योर पोर्टल एंड जस्ट डिलीट दैट वीएम, उस वर्चुअल मशीन को तुम डिलीट कर दो। Okay, sir. ठीक है, इन द मीन टाइम एवरीवन, मेरे पास जो स्टोरेज आरजी पे जो मेरा एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना हुआ था, कॉपीड वाला नहीं, ओरिजिनल वाला, हम इस ओरिजिनल वाला को कॉपी करते हैं, और श्रेयांशी के स्टोरेज आरजी के रिसोर्स ग्रुप में जाके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम इसका नाम देते हैं उबंटू कॉपीड नितिश। ठीक है, ये ईस्ट यूएस ले रहा है, क्या हम सेंट्रल यूएस दे सकते हैं? चलो दे देते हैं सेंट्रल यूएस। नहीं, सेंट्रल यूएस पे ना तुम्हारे पास ये नहीं होगा, पब्लिक आईपी नहीं बन पाएगा। चलो फिर भी देखते हैं। मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे सारे तुम ट्रैक कर सकते हो कि ये कब क्या हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट कॉपिंग हो रहा है, ये होपफुली फेल कर जाएगा, लेकिन फेल करने का रीजन क्या होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो एरर डिटेल्स में हम चलते हैं कि ये फेल कर गया, मतलब कि फ्रॉम नितिश ये श्रेयांशी में ट्रांसफर नहीं हो पाया। ट्रांसफर नहीं होने का इनका रीजन क्या है, मैं इसके अगर पूरे एरर को पढूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस नॉट परमिटेड बिकॉज डिस्क उबंटू इज करेंटली अटैच्ड टू अ रनिंग वीएम। अभी हमारा जो वीएम है ना वो रन कर रहा है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं अपने वीएम पे जाऊंगा, अपने वर्चुअल मशीन पे जाऊंगा और उसे अभी कुछ देर के लिए स्टॉप कर दूंगा। यहाँ पे स्टॉप, क्लिक ऑन स्टॉप। ये होपफुली स्टॉप हो गया होगा। अच्छा अभी स्टॉपिंग है, लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। सर ये जो हम लोग डिस्क से जो वीएम बना रहे हैं, डिस्क कॉपी करके फिर वीएम बना रहे हैं, तो सर ये और वो जो इमेज हम लोग जो बना रहे थे वीएम का एक पर्टिकुलर इमेज बना रहे थे कुछ हाँ क्लास फाइल, तो हाँ, ये दोनों क्या सेम कंसेप्ट है सर? देखो कंसेप्ट ये है कि जब हम लोग इमेज से वीएम बना रहे थे तो जो हमारा जो ऑपरेटिंग डिस्क है ना, ऑपरेटिंग डिस्क स्पेस था ना, वो एकदम फ्रेश क्रिएट होता था। ठीक है, अच्छा
अब हम लोग क्या किए ना, हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग डिस्क हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग डिस्क हमने कॉपी करके कहीं से लेके आया, अब हमारे पास ऑपरेटिंग डिस्क है तो हम वहां से वीएम बना सकते हैं, ये कंसेप्ट है, ठीक है। मैं इसे क्लोज अच्छा। करता हूँ, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ उबंटू वीएम कॉपीड, ठीक है, ईस्ट यूएससी दे देता हूँ का। यार तुम्हारे स्टूडेंट्स पोर्टल पे, मतलब स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं यार। ये अज्योर फॉर स्टूडेंट्स है, मेरा तो फ्री ट्रायल है वो क्रेडिट कार्ड वाला। सी, इसने स्टार्टिंग कॉपी डिस्क यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट किया मेरे स्टोरेज आरजी से, और ये कॉपी कर रहा है टू स्टोरेज आरजी ऑफ श्रेयांशी, ठीक है। स्पीड देखो कितना है, 182 Mbps, क्योंकि ये विद इन दी नेटवर्क हो रहा है, विद इन दी अज्योर नेटवर्क हो रहा है, इसलिए इतना स्पीड दे रहा है। बट स्टिल हमारे पास 127 GB का कॉपी फाइल होगा हमारे अपने दूसरे दूसरे सब्सक्रिप्शन में, सॉरी, हाँ। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जब तक टाइम लगेगा मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं आता हूँ। तो वो भी ऑलमोस्ट कॉपी हो गया है। उसके कॉपी होने से पहले ना एक कंसेप्ट है ना, एक कंसेप्ट है, पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा डिस्क होता है, पहले इसको डिलीट करते हैं। जो डिस्क हम लोग बनाते हैं ना, या फिर जो भी हम लोग डिस्क अभी अटैच होता है ना, वो डिस्क का ना 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड डिस्क, ठीक है, और एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं अनमैनेज्ड डिस्क। देखो, बेसिक सा डिफरेंस अगर जानना है तो मैं ये बताता हूं कि जब अज्योर शुरू में आया था तो जो हमारा जो डिस्क मैनेजमेंट था ना, जो डिस्क मैनेजमेंट था वो हम लोग खुद करते थे, यूजर खुद करता था। लेकिन विद द लेटर ऑन पासेज ऑफ द टाइम ये अज्योर वाले ने बोला कि लेट मी हैंडल ऑल दिस डिस्क मैनेजमेंट ऑन माय एंड, मतलब ये अज्योर अपने एंड से डिस्क को मैनेज करता था, ठीक है। तो मैनेज डिस्क अब बहुत ज्यादा रिकमेंड होने लगा, बिकॉज वी एज अ यूजर हमें कितना पता है रिडंडेंसी के बारे में, तो हम लोग बोलते हैं अज्योर यू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो मैनेज डिस्क आर रिकमेंडेड एंड मॉडर्न वे टू हैंडल डिस्क स्टोरेज फॉर अज्योर वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। और मैनेज डिस्क जब से आया है, अज्योर हैंडल्स द डिस्क मैनेजमेंट टास्क इंक्लूडिंग डिस्क क्रिएशन, रेप्लिकेशन, स्केलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑन देयर एंड, ठीक है। तो ये हमें और फोकस करता है कि ताकि हम अपने वर्चुअल मशीन्स पे ज्यादा फोकस करें रादर देन ऑन आवर डिस्क स्पेस एंड ऑल, ठीक है। तो फिर ये इनिशियली अनमैनेज डिस्क था जो कि यूजर मैनेज करता था, लेकिन लेटर ऑन मैनेज डिस्क आने लगा एंड दिस वन इज द मोस्ट रिकमेंडेड वन, ठीक है। तो इसका जो हमारे की फीचर्स है ना, देखो अज्योर डिस्क मैनेजमेंट का सबसे की फीचर यही है कि ये सिंप्लीफाइड होता है और ये अज्योर ऑटोमेटिकली अपने एंड से मैनेज कर देता है। जो अवेबिलिटी होता है, रिडंडेंसी होता है, ये सब कुछ ये अपने एंड पे रिजॉल्व कर देता है। और बैकअप और स्नैपशॉट, मतलब बैकअप मतलब क्या हो गया, अगर मान लो किसी दिन ये डिस्क फेल कर गया ना, तो वो अपने एंड पे इसका एक बैकअप भी रेडी करके रख देते हैं,
एक बैकअप भी रेडी करके रख देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अनमैनेज डिस्क होता है ना, तो यूजर को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, फ्रॉम रिडंडेंसी टू बैकअप टू मैनेजमेंट, ये सब कुछ यूजर को खुद हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियली हमारा जब अज्योर आया था तो हमारे पास सिर्फ अनमैनेज डिस्क का कंसेप्ट था, लेकिन अब वो मैनेज डिस्क का कंसेप्ट देने लगा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कभी क्लाइंट आए जिनके पास एक पुराना वर्चुअल मशीन हो जिसके ऊपर अनमैनेज डिस्क है, जब तुम उसको माइग्रेट करोगे नए वर्चुअल मशीन पे, तो एक ऑटो अपग्रेड का फीचर आता है, दैट इज हम लोग अपने अनमैनेज डिस्क को मैनेज में कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इसलिए जब भी हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो हमारे डिस्क सेक्शन में हमारे पास वहां पे आता है प्लेटफॉर्म मैनेज्ड डिस्क। ठीक है, यूजिंग आवर वर्चुअल क्रिएशन टाइम वो हमारा प्लेटफॉर्म मैनेज डिस्क आता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैनेज डिस्क एंड अ अनमैनेज डिस्क। ठीक है, चलो अब हमने देखा कि यहाँ पे तो कॉपी हो गया उबंटू वीएम कॉपीड नीतीश, ये पूरा 30 GB का यहाँ पे कॉपी होके ये श्रेयांशी के अकाउंट पे चला गया। श्रेयांशी प्लीज क्विकली शेयर योर स्क्रीन। श्रेयांशी प्लीज क्विकली शेयर योर स्क्रीन। Yes, ठीक, sir. हाँ चलो श्रेयांशी क्लिक ऑन द सेकंड वन जो जिसमें एक्चुअल सारा हमारा कॉपी होके आ गया है, उबंटू वीएम कॉपीड नीतीश। क्लिक ऑन दैट वन। अरे नहीं, यहाँ Okay. पे यहीं पे अज्योर पोर्टल पे ही क्लिक ऑन दैट वन, उबंटू वीएम कॉपीड नीतीश, नीचे वाला। ऊपर वाला Okay. तो सक्सेसफुल हुआ नहीं ना। क्रिएट वीएम करो यार, ये ईस्ट यूएस ले लिया ना, ये दिक्कत कर देगा बाद में। चलो गिव द नेम माई वीएम फ्रॉम नीतीश। चलो नीचे आ जाओ। ठीक है, नीचे आ जाओ, अलाउ कर दो सब कुछ। चलो नेक्स्ट, चलो डिस्क पे चलो। हाँ यहाँ पे थोड़ा वेट करो, नीचे जाओ। देखो की मैनेजमेंट जो है ना, ये प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की, ये सब कुछ यही तुम्हारा कर देगा ऑन देयर एंड। तुम्हें यूजर से कुछ नहीं करवाना है। नेक्स्ट नेटवर्किंग पे चलो। नीचे जाओ, चलो नेक्स्ट मैनेजमेंट पे चलो। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। चलो क्रिएट करो। अब ये जो डिस्क है, ये डिस्क मेरा डिस्क कॉपी होके हम दूसरे सब्सक्रिप्शन पे भेजे हैं, जो श्रेयांशी का सब्सक्रिप्शन है। अब इसमें भी मेरे को कॉन्फ़िगर कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी सारे वेब सर्वर्स कॉन्फ़िगर्ड है, हमारा डेटा सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है ओवर देयर। तो हम देखते हैं, लेट अस सी वेदर इट्स रियली कॉन्फ़िगर्ड और नॉट। कि इसका आईपी को हिट करेंगे तो डायरेक्टली मेरे को केक शॉप दिखना चाहिए। लेट अस वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट फॉर अ मोमेंट। चलो go to resource and copy the public IP and hit it। अरे यहीं पे नहीं यार, दूसरे टैब पे करो ना, दूसरे टैब पे करो। क्लिक ऑन अदर टैब। हाँ, अरे वहां पे प्लस करो ना, वहां पे प्लस करके करो तो। अरे दूसरे टैब पे ऊपर में एक और टैब। Actually, that screen showing part is showing here. I'm hiding अच्छा and trying. अच्छा, वो नीचे Yeah, नहीं आ yeah, रहा है। yeah. Yeah, yeah. अच्छा, अच्छा। Push. उसको ड्राउन कर, हाँ ड्रैग करो तो नीचे। Oh, shit. चलो पेस्ट करो, मैक्सिमाइज करो।
Yes, sir, it's showing. भाई देख लिए सब लोग कैसे माइग्रेशन होता है? हमने काफी ग्रैनुअर लेवल पे माइग्रेशन किया है, ठीक है। हमने एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन तक माइग्रेशन कर दिया। विद इन द सब्सक्रिप्शन तो किया ही हमने, लेकिन दूसरे सब्सक्रिप्शन पे भी माइग्रेट किया है, ठीक है। तो गाइज तुम लोग आज पढ़ने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, 2 दिन से तुम लोग के पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। फ्रॉम स्टोरेज अकाउंट टू स्टोरेज एक्सप्लोरर टू माइग्रेशन मॉनिटरिंग, बहुत कुछ है, स्टैटिक वेबसाइट्स। इसीलिए प्लीज इसे पाइल अप मत होने देना। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन यार कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू नो इन योर इनिशियल कॉलेज डेज। ये सब लोगों को नहीं पता होता है। If suppose you ask your colleagues, they won't be knowing this much about cloud, जितना तुम लोग को अभी पता है, जितना हम लोग ने बताया है अभी तक। So yeah, you can stop sharing. You can stop sharing. So I think so I can stop recording here as well.